सो आई नेवर वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना था। और जो भी चेंज हुआ है मेरे लाइफ में इट इज़ पोस्ट बीटेक और इंटर्नशिप के बाद से जर्नी शुरू हुई। डेवलपर लेस परफॉर्म कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, इसका वो मतलब होता है कि उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो वो करना, उसको ये नहीं पता कि करना क्या है। देयर आर टेक जायंट्स, देयर आर स्टार्टअप्स, तो स्टूडेंट्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप अपना करियर शुरू करते हो, ठीक है, पहले तो भूल जाओ कि एग्जिस्ट करती है ये चीज़ें, ये है या कुछ भी। थिंग यू लव एंड हेट अबाउट योर प्रोफेशन एंड ईच अदर। बैकएंड में सब सही लगता होगा। You've learned HTML, CSS, JS, but you still feel like you're not enough. You've built a few projects, but your GitHub, it feels empty. You've applied for jobs, but the rejections, they keep on piling up. Sounds familiar? If you are someone who's looking for a role into web development, wondering what does a developer do all day? Do I have it what it takes to be a developer? Should I join a startup or wait for that big tech offer? This episode is for you. Because today I have two people with me who live that life every single day. One is Gaurav Mishra with over 10 years of experience in backend development, and the other is Ujjwal Divedi with over 8.5 years of experience as front-end lead at Exino. Hi Gaurav, hi Ujjwal. Thank you so much for joining us for today's episode. So before we move forward, let's start with talking about you people. How did you join Exino and how has the journey so far? Thank you, Nilakshi. Thank you for having me here. So I joined Exino as an intern. So before Exino, I was working as a designer. Then I decided to be a developer. I wanted to see कि developer करते क्या है. Yeah, I was bored doing wireframes, prototypes. So I joined here as an intern. I went through the rigorous training, and then I become a software engineer. Then I worked for 2 years as a software engineer. Then I promoted to L2 software engineer. Then I got promoted to senior software engineer. I think then I got the experience to lead the team, that how it feels to lead the team members. Hi Lakshi. Before joining Exino, I was part of 3 different organizations, and coming to here, I think it was one of the best job which I ever feel like. Previous to this organization, I worked for Infosys, TCS, Sapient, and this being my 4th company, and I love working here. And my role here is a lead engineer, and I've been part of multiple projects here. I made a lot of friends here, and a lot of good things are happening day by day. I like the work environment here, so everything is cool, good here. It's very nice. So ये मेरा आप दोनों से सवाल है, like what was the first time you got interested into your side of development? Like कुछ ऐसी story है behind that कि आपने college में आपको लगा, जैसे आपने तो बोला कि मैंने पहले designing, I started with designing. So what was that one click that you thought कि नहीं ये चीज़ अब आगे वो करनी चाहिए, आपने किसी को वो करके you decided कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? And same to you, how did you fall into your side of development? सो मेरा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि मुझे यही फील्ड चूज़ करनी थी. आई डिड बीटेक एंड दैट टू विद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. उसके बाद इट वाज नॉट इजी to search job at that time. I was talking about 13, 14. It was the recession time after 2008. So luckily I cracked one of the interview of Infosys and I got there, and then things drastically changed. My thought process changed because at that time when I was not having job, and not only me, a lot of friends of mine who has started preparing for government jobs, looking for any other private jobs, not in IT sector but in different sectors. So the time after clearing BTech, waiting for 6 months, 8 months, 1 year, it was a frustrating time because you are not getting job. You have spent 4 years, and family's expectations, and everyone's have some expectations from you, but
वो बहुत ही ऐसा टाइम होता है कि वो आज के समय में भी रिलीवेंट है. जो भी लोग बीटेक कर लेते हैं, जॉब नहीं मिलती है, दे वर आल्सो फेसिंग द सेम टाइम. So they either starts preparing for other sectors or go with the government sectors, but that are also not easy these days. Lot of competitions are there. So luckily I got cleared one of the interview, and then I landed into IT world, and from there to now it has been a lot of ups and downs in IT career. But yeah, we are habituated to this. What about you as well? It's fine. So I never wanted to be a software engineer. Different. Both of us. I was pursuing BTech, तो मेरे मन में तो था कि I will go for a government job. Okay. मेरा बैकग्राउंड भी वैसा ही है कि हमारे साइड से लोग UPSC की तैयारी करते हैं. हाँ. But in last semester we had a mandatory internship. Okay. We had to go through a mandatory internship. आप को कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा. So I joined a firm. I did internship. And there I learned C#. C# उस समय बहुत चलता था. C# और HTML और CSS. तो एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको सबमिट किया, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना कि हाँ ये कुछ तो है जो अपने से हो सकता है. ठीक है. और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल भी वैसा है कि फ्रेंड्स आर वर्किंग इन IT फर्म्स. वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि अरे गवर्नमेंट जॉब क्या, एक बार ट्राई तो करके देखो. ठीक है. देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़. मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठता ही नहीं था कि मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करने की. ठीक है. बट कैंपस प्लेसमेंट का टाइम निकल गया, सब हो गया. मीनवाइल इंटर्नशिप भी ख़त्म हुई. उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस इंटरव्यू देना शुरू किया और बहुत मज़ेदार टाइम था वो. Off campus तो बहुत टफ होता है. आप दिल्ली में जाते हो, मेट्रो पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह इंटरव्यू देते हो, फिर वेट करते हो. तो ऐसे करते करते मेरे पास ऑफर्स आए. ठीक है. कुछ जावा डेवलपर क्या है, बट मुझे बैक एंड डेवलपर नहीं बनना था. ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी उसी समय. ठीक है. देन एक मैं एक पब्लिकेशन हाउस है दिल्ली में, वहाँ मेरा इंटरव्यू क्रैक भी हो गया. उन्होंने मुझे जॉब भी ऑफ़र की, बट वो एज अ डिज़ाइनर उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जॉब ऑफ़र की. बट काम डिज़ाइन. ये डिज़ाइनर पे बन गया. ठीक है. मैंने 1.5 साल बिताए. फिर उसके बाद लगा कि आई हैव टू बी अ डेवलपर, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डेवलपर आफ्टर बीटेक से पहले नहीं. तो देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज अगेन. एक्जीनो वाज कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यूज. ठीक है. तो आई गिव इंटरव्यू इन एक्जीनो and it was a whole day process for me, going through 4 to 5 rounds. इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया. देन यहाँ पे इंटर्नशिप, फिर उसके बाद फिर नाइस. उसके बाद तो हमें पता ही है. यहाँ पे हम लोग ऐसा है ना कि हम यूपी है बिहार से, तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब. अगर कोई हाँ. एक्सपेक्ट लगे तो गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट चाहे वो आईटी में कितना भी कमा रहा हो या क्या हो, वी डोंट गेट दैट मच रिस्पेक्ट. अब माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है. हाँ. लेकिन अभी तक यही था, जॉब अगर है तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए. प्राइवेट हर जगह ही है. आई गेस हिमाचल में वेयर आई बिलोंग, वहाँ पे भी ऐसा ही है. सो आपसे देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट योर कॉलेज लाइफ. सो इन कॉलेज वी स्टूडेंट्स यूजुअली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज. या तो वो डीएसए करते रहते हैं, या फिर वो डेवलपमेंट में होते हैं, वेब ऐप डिज़ाइनिंग वाली चीज़ भी हो गई, या फिर वो उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है. तो विच कैटेगरी डिड यू फॉल एट व्हेन यू वर यंग? मैं पर्सनली तो थर्ड वाली जो तुमने बोला, नहीं पता क्या करना है, लिटरली गोइंग विद द फ्लो. वहाँ से गए, कॉलेज से निकले, 2 कंपनी आई, वी डिडंट गेट दैट लकी टू सेलेक्टेड इन दैट कॉलेज. तो पूरा सीएस और आईटी में केवल 2 लोगों का हुआ था उसमें, अराउंड 120 के बैच में. उसके बाद सब भटक रहे थे. कहीं किसी चौराहे में चले जाओ, कोई ना कोई दोस्त मिल जा रहा, कहाँ जा रहे हो यार, ये इसका आया है, इसका ऑफ कैंपस आया है, यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है. सो इन कानपुर PSIT इज़ वन ऑफ द कॉलेज वेयर ऑफ कैंपस हायरिंग इज़ गोइंग ऑन. सो वी जनरली यूज टू गो, और वहाँ पे जाके देखते थे. हाँ, मैक्सिमम कॉलेजेस का बहुत भीड़, वो इट्स लाइक मेला पूरा चलता है. तो वहाँ पे दिखते हैं, अरे ये तो तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ पे कैसे, कह रहा तुमने भी तो नहीं बताया. तो सब एक जगह मिलते हैं ऐसे. वो मास रिक्रूटमेंट वो AIB का एक है भी, मास महाराजा, भाई वैसे काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट होता था उस समय. तो वी वर नॉट श्योर, क्योंकि हमें
थ्योरेटिकल सब पढ़ाया गया, बट करियर में क्या करना है आगे, क्या किस तरह की लाइफ होगी, अगर हम कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट का क्या महत्व है, ये सब नहीं बताया गया वहाँ पे। वही 30 साल पुराना करिकुलम चलते चले आ रहा, कुछ भी इन्हेंसमेंट या कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इंटर्न्स की जो ट्रेनिंग जो 3rd ईयर या 4th ईयर में होती है हमारी, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि आप कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज सीख के आइए। कुछ BSNL में जाके हमने 1 महीने की ट्रेनिंग की, जस्ट वो 2-3 दिन गए और सर्टिफिकेशन मिल गया, वो दिखा दिया, सबमिट किया। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस एट दैट टाइम। क्योंकि अभी के अगर कंपेयर करें 10 साल पहले का और अभी का, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब तो कोर्सेज़ भी AML और AI में आ गए हैं, कई चीज़ें बदल गई हैं। अब इट्स नॉट जो, हाँ कुछ बेसिक अभी भी सेम है, डेटा स्ट्रक्चर जो पहले था अभी भी और आगे भी वही रहेगा, बेसिक्स आर नॉट चेंजिंग। लेकिन जो नई टेक्स आ गई हैं वो अपडेट होने चाहिए, करिकुलम में हमारे सब्जेक्ट्स में चेंजेस आने चाहिए जो उस समय नहीं थे। तो स्ट्रगल करिए यहाँ पे आके करना पड़ा, अगर कॉलेज में स्ट्रगल कर लिया होता तो शायद अच्छा रहता है यहाँ पे। तो ये रहा था, वी आर इन, आई पर्सनली आर इन 3rd कैटेगरी, जहाँ पे पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो जॉब लगने के बाद शेप किया करियर को। सो आई एग्री विद गौरव कि तीसरी कैटेगरी वाले लोग, मतलब मैं भी तीसरी कैटेगरी में पहुँच सकता हूँ। तो ऐसा था कि अभी तो क्या है ना, मुझे पता है कि DSA है, DSA का कोर्स अवेलेबल है और ये बहुत सारे AI कोर्सेज पे, उस समय नहीं था इतना कुछ भी। DSA एक सब्जेक्ट होता था जिसको डा बोलते थे, DAA। और फिर और उसमें फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक ये कॉन्सेप्ट कॉलेज में बताया ही नहीं जाता था। और एक तो आप CS में एडमिशन ले रहे हो, नॉन CS बैकग्राउंड होके, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेमेस्टर वाली पढ़ाई कर रहे हो कि यू हैव टू जस्ट क्लियर द सेमेस्टर। तो अगर वो चीज़ समझाते नहीं तो समझ में भी नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतना सेल्फ एक्सप्लोर मैंने तो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे करते करते कॉलेज तो ख़त्म हो गया उसके बाद। तो इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि हमें अभी भी नहीं पता है क्या कर रहे हैं हम कहाँ थे। हाँ, तो ठीक है। तो उस समय कोर्सेज और ये कोई एक्सपोजर था ही नहीं। तो और ये भी था कि ये तो करना ही नहीं है अपने को, तो हम करेंगे अपनी UPSC वाली तैयारी या कुछ तो करेंगे। तो इसीलिए एकेडमिक्स का सिर्फ इतना सा मतलब था कि हमें सब्जेक्ट में पास करना है। हाँ, मुझे तो ये सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए, मुझे ये क्लियर करना है। जावा है, एडवांस जावा है, वो क्लियर करना है, मुझे क्रेडिट चाहिए पूरे बीटेक के टाइम पे चाहिए, डेली टाइम पे नहीं चाहिए, बस इतना था। और जो भी चेंज हुआ है मेरे लाइफ में पोस्ट बीटेक और इंटर्नशिप के बाद से जर्नी शुरू हुई। So, आप दोनों ने, you transited from a developer to a lead. So, for a viewer who is a developer and who has this question in mind that what changes when you step into that lead role, what would you answer to that developer? So when I was working as a developer, Yes. तो मेरे पास टिकट होती थी। आई हैव टू वर्क ऑन दैट टिकट एंड आई हैव टू डिलीवर दैट टिकट विद इन वॉट एवर टाइम जो स्टोरी पॉइंट दिया गया टिकट को। फॉर रेफरेंस, अगर टिकट और स्टोरी पॉइंट्स का मतलब ये है कि सारे टास्क को एक टिकट में डिवाइड किया जाता है, जितने भी टास्क होते हैं, और उनको स्टोरी पॉइंट में कितने दिनों में ख़त्म होगा, कितने टाइम पे ख़त्म होगा। इट डिफाइंस अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें फॉलो होती हैं। तो एज अ डेवलपर ये माइंडसेट होता है कि टिकट है, आपको डिलीवर करना है, ठीक है। और आपकी पर्सनल एस्पिरेशन होता है कि मुझे, जैसे कि मैं UI डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मुझे इस साल नोड सीखना है, तो मुझे इस साल नेक्स्ट सीखना है, वो भी एस्पिरेशन होता है, साथ साथ आपके प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल से। लेकिन व्हेन यू गेट ट्रांसफॉर्म एज अ लीड, तो आपको सिर्फ एक टिकट का नहीं, पूरे स्प्रिंट का देखना होता है कि एक स्प्रिंट टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए। साथ साथ सिर्फ स्प्रिंट की बात नहीं है, हर पर्सनल इंडिविजुअल का एक एस्पिरेशन भी होगा कि वो प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ साथ वो टेक्निकल एस्पिरेशन पूरी कर पा रहा है कि नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द थिंग्स। और साथ में टीम आपकी एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। दे शुड बी वेल फोकस्ड, एनर्जेटिक। तो वो भी है, उनका एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो विच विल डिस्कस, वो फन फ्राइडे हम फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट्स का। तो माइंड तो श्योर शॉर्ट डिफरेंस आ जाता है। जो ये लीडरशिप स्किल्स थे, वो थे पहले से या फिर विद टाइम डेवलप हो गए? मतलब इतना ज़्यादा वो सोच पाना मेरे लिए मुश्किल है कि पहले से था कि ऐसे टाइम के साथ आया। मैंने बहुत सारे टेक्निकल लीड्स के साथ काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ काम किया है, टेक्निकल प्रोजेक्ट आया है बस।
उनसे बहुत कुछ सीखा है कि वो उस पोजीशन में होते थे तो वो क्या करते थे। अगर कुछ टाइम क्रंच है एंड वी हैव टू डिलीवर समथिंग, एंड वो कैसे मैनेज करते थे कि टीम स्मूथली काम कर रही है और वो दूसरे साइड पे वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सेम व्हेन आई वाज वर्किंग इन प्रोडक्ट, HRMS करके एक प्रोडक्ट था एक्जीनो पहले, तो उसमें भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या लीड, हाउ दे आर हेल्पिंग मी कि अगर मैं किसी पॉइंट पे फंस रहा हूँ तो मुझे कैसी हेल्प चाहिए। तो वो माइंडसेट वहाँ पे भी काम करता है कि अगर कोई डेवलपर कुछ काम कर रहा है, अगर उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्या सोचता होगा, उसको क्या हेल्प की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हैं, वो धीरे 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 टाइम के साथ आपको समझ आती है। करेक्ट। वो ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि हम डायरेक्ट लीड बन जाएं। डेवलपर टाइम से धीरे धीरे सीखता चला जाता है अपने सीनियर्स को देख के कि जैसे एक डेवलपर है, फिर एक सीनियर डेवलपर है, फिर एसोसिएट लीड, फिर लीड। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ये एक धीरे धीरे आता रहता है उसको, तभी वो डेवलपर फिर सीनियर डेवलपर होता है, फिर उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन वो पहले देखता आ रहा होता है कि अपना उसका सीनियर कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इफ़ेक्टिव प्रोसेस, कि डेवलपर से लीड बनने का जो प्रोसेस है वो। सो कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई डेवलपर है वो थोड़ा सा मतलब हाउ डू यू अप्रोच अ डेवलपर हु इज़ परफॉर्मिंग अ लिटिल लेस और हु इज़ परफॉर्मिंग हाईली वेल, लाइक आप कैसे उनको अप्रोच करते हो कि दिस इज़ योर मतलब परफॉर्मेंस उनको बताने के लिए कि दिस इज़ योर परफॉर्मेंस एज अ। एक्चुअली क्या है ना, जो ये पॉइंट होता है कि जैसे कोई डेवलपर लेस परफॉर्म कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कैपेबल नहीं है। इसका वो मतलब होता है कि उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो वो करना, उसको ये नहीं पता कि करना क्या है। अगर उसको ये अच्छे से बता दिया जाए कि करना क्या है, आउटकम क्या चाहिए, ही कैन डू। मतलब कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जब हम डेवलपर थे तभी भी कुछ ऐसे टास्क मिल जाते थे कि समझ में नहीं आता था कि इसमें करना क्या है। तो पहले उसको एक्सप्लोर करना कि करना क्या है, उसके बाद उसको स्टार्ट करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये कहना कि कोई लेस परफॉर्म करना इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, क्योंकि कोई यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सब कैपेबल इनफ हैं। उनको बता दिया जाए कि करना क्या है। और हाँ, कभी कभी कुछ होता है कि वो कुछ सॉल्यूशनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बीइंग ए लीड और सीनियर, वी नीड टू हेल्प देम, वी नीड टू नर्चर देम, कि यहाँ से उनको उस चीज़ को हेल्प करेंगे तो आगे वो अपने आप करने लग जाएंगे काम। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे तुम्हें लगा हो रिसोर्स के साथ ज़्यादा मेहनत लगी हो? बराबर। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक टीम है वो एक क्रिकेट की टीम की तरह होती है। लाइक किसी प्रोजेक्ट की टीम, सब कोई ना किसी रोल में फिट हो रहे होते हैं। तो एज अ कैप्टन और एज अ कोच यू हैव टू थिंक कि वो कहाँ पे फिट होता है वो इंडिविजुअल। और कोई भी बेकार डेवलपर नहीं है। अगर वो बेकार डेवलपर है तो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं होता। वो एक लेवल फिल्टर होके ही आ रहा है। सो हाँ, कि सबके काम करने का एक तरीका है। अगर ऐसा है कि ही और शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, और तो आप तरीके आप बात करो उससे, समझो प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्लॉकर आ गए हों, वो नहीं समझ पाया हो या नहीं समझ पाई हो। तो और ये चीज़ें बातचीत से ही हो पाती। मेरा तरीका तो ये है, बैठो और बातचीत करो कि हाँ, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। थोड़ा क्रिटिकल ना होकर थोड़ा पॉजिटिव वे में डिस्कशन हो तो फिर विन विन सिचुएशन होती है फिर इसमें भी। और अगर ये डेवलपर की तरफ से आ जाए तो ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि लीड बीइंग ए लीड आपके पास बहुत काम होंगे, आप नहीं इंडिविजुअल डेवलपर के पास जा पाओगे। हाँ, आपको डेवलपर शुड रीच टू द लीड और इमीडिएटली कि हमें नहीं समझ में आया आप बता दो। ये उसको डर नहीं होना चाहिए कि हम अगर बार बार पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आया आप 10 बार जाके पूछिए, जब तक क्लियर ना हो पूछते रहिए, वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी समझ में आएगा, नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन नहीं समझ में आया तो काम स्टार्ट तब तक ना करो जब तक समझ में नहीं आएगी करना क्या है। तो ये होना चाहिए कि डेवलपर को जाना चाहिए लीड के पास एटलीस्ट, क्योंकि लीड को उस समय पता नहीं होगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़। और ये एक और चीज़ है इसमें, एंड आई एग्री विद गौरव की कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन ब्रिज अगर हमेशा से रहेगा ना तो ये कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई परफॉर्मिंग नहीं है। आपको पता होगा कि हाँ, ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। तो ये कम्युनिकेशन हमेशा होती रहनी चाहिए। तो जब कॉलेज में होते हैं हम, तो यू नो प्लेसमेंट्स के टाइम सब सारी टाइप की कंपनीज आती हैं, मतलब देयर आर टेक जायंट्स, देयर आर स्टार्टअप्स। तो स्टूडेंट्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, दे सर्व कि ये कंपनी को ज्वाइन करूँ या फिर कैसे। स्टार्टअप में उनको रहता है कि हाँ वी विल बी गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट ऑफ कोर्स रिस्क रहेगा। बट
when they think of tech giants, they are like stability तो है but काम they don't know whether they'll get it or not. So आपका क्या opinion and what would you give one feedback about this one thing? देखो अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के लिए बीटेक किया या आपने आईटी चूज़ किया, जो भी आपकी ब्रांच रही, ठीक है, आपका तो एस्पिरेशन रहा होगा ना कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या कुछ भी बनूंगा, इस फील्ड में बनूंगा, तो ये इसमें कंफर्ट सेलेक्ट करने की तो कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए कि आपको एज अ कंफर्ट वाली जॉब चाहिए। आप करो ना, एक सर्टेन एज के बाद उस क्राइटेरिया में जाओ। आपको हमेशा से ये देखना चाहिए कि कहाँ आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो एक डेवलपर अगर एक स्टार्टअप ज्वाइन करता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो कभी डेवऑप्स का भी काम कर रहा हो, कभी अगर वो एज अ फ्रंट एंड ज्वाइन कर रहा है तो हो सकता है वो कभी बैक एंड का भी काम सीख रहा हो, ठीक है। लेकिन बड़े टेक जाइंट्स में रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। जो आपको टैग मिलता है आपके डेजिग्नेशन का, आपको वही काम करना होता है, और जो स्विच होता है टेक का वो बहुत स्लो होता है, और स्टार्टअप में यही चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। तो इफ़ यू आर ओके विद दिस कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है, और आपको वैसा नहीं है, और कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब बियॉन्ड द आवर्स जाना है। स्टार्टअप में भी ऐसा कल्चर नहीं होता, वहाँ पे भी प्रॉपर चिल कल्चर है। बस ये है कि यू विल गेट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स एज कम्पेयर टू बिग एमएनसी द टेक जायंट्स। मेरा तो सेम पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है। पहले मैंने 4 साल इन्फोसिस में काम किया एंड देन अराउंड 1 ईयर इन TCS। उस समय तक अराउंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस था, एंड नॉलेज के मामले में आई एम लिमिटेड टू सर्टेन सेट्स ऑफ स्किल, कि उसके अलावा नहीं है। जैसा उज्जवल ने बताया कि स्टार्टअप या कोई भी एक तो हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मिड लेवल और लो लेवल के स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, या थोड़े स्टेबलाइज्ड हों कि 4-5 साल मार्केट में हों। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड नहीं रहेंगे कि आप यही करना है, दूसरे के लिए आप एक टिकट रेस करिए, दूसरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी करने के लिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो नॉलेज हमने 4-5 साल में नहीं मिला था, अच्छा ये अपोजिट हुआ मेरे साथ। एक्चुअली स्टार्ट में जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बीटेक क्लियर कर चुके हैं, दे शुड गो फॉर ईदर स्टार्टअप और लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ उनको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। सही में, तो इन्हीं जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ, जहाँ ग्रोथ, करेक्ट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। वो जब कैंपस में कंपनीज आती हैं तो सब अपना अपना कुछ प्रेजेंटेशन देते होंगे कि वो क्या काम करती है, तो उससे भी कुछ समझ में आता है कि हाँ, कि क्या मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है, ये कंफर्ट और इन सब के अलावा भी कि क्या मेरे लिए बेटर होगा, ये क्या काम करता है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो कंपनी के पोर्टल पे मिलेगा, चाहे आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी उस पोस्ट के बारे में जानना हो तो इट विल बी ईजी टू सेलेक्ट एंड चूज। एक्सप्लोर कर। यस। सो नीलाक्षी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब 4th ईयर फाइनल ईयर था? उस समय कॉलेज में कई कंपनीज आ रही होंगी, प्लेसमेंट तो क्या था उस समय माइंड में? कहाँ जाना है, कैसे करना है, कितने इंटरव्यूज़ दिए? इंटरव्यूज़ तो मैंने मतलब मैं बताती हूँ, जब मैं 4th ईयर में थी तो मेरा भी क्लियर हो गया था कि हाँ, आई हैव टू जॉइन प्राइवेट सेक्टर जस्ट लाइक उज्जवल। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी पूरा गवर्नमेंट सेक्टर है। द पॉइंट इज़ कि मतलब मेरे को भी बोला गया कि गवर्नमेंट सेक्टर इज़ बेटर, बट मैं भी मतलब आई वॉज रेडी टू टेक द रिस्क, एंड मुझे पता था कि डेवलपर स्किल्स मेरे ठीक हैं, तो आई शुड ट्राई दिस वे। बट पहले मुझे इतना डिमोटिवेशन हुआ है, मतलब इतनी सारी कंपनीज आई हैं एंड मतलब इतने रिजेक्शंस आई हैड टू फेस, कहीं तो रिज्यूमे भी मतलब नहीं क्लियर होता था। एंड देन व्हेन इट वाज एक्जीनोज इंटरव्यू, आई बिलीव मेरे भी मतलब अराउंड बहुत उस मतलब इसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर करके आई केम हियर। तो फाइनल ईयर में मेरा भी यही रहता था कि आई हैव टू फोकस, मतलब अभी तो डेवलपमेंट में मैं DS से करती थी, और अकॉर्डिंग टू कंपनी आई यूज़ टू चूज़ कि जैसे इस कंपनी में वेब डेवलपमेंट का था तो आई यूज़ टू फोकस देयर, बट DS से कांस्टेंट रहता था। तो ये तो अबाउट मी हो गया थोड़ा। सो मेरा आपसे सवाल है कि एक्जीनो में व्हाट डज़ अ नॉर्मल डे लुक लाइक? मतलब हर रोज़ सेम रूटीन होता है या फिर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कभी मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और या फिर कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि इट इज़ चिल? सो व्हाट डू यू डू ऑन दोज चिल डेज एंड हाउ डू यू वर्क? मिक्स तो रहता है, ऐसा
कांस्टेंट तो कभी नहीं रहता, क्योंकि जब हम किसी क्लाइंट के लिए कोई साइट पे काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन साइट्स में कभी कुछ अगर इशू आता है, सो इट विल बी कायोस, मतलब क्लाइंट भी कॉल पे कॉल, और हम लोग मतलब उस दिन तो बेकार ही जाता है दिन। बेकार नहीं, मतलब वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज एंड सॉल्व इट, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस ऐसा जनरली कम ही होता है। ऐसा जनरली मान लो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जिस दिन हुआ उस दिन थोड़ा सा रहता है हेडेक कि हाँ सब चीज़ें सही चली जाएं, और कभी कभी डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ चीज़ें अगर नहीं सही होती हैं तो फिर ज़्यादा एडिशनल एफर्ट लगता है। बाकी डे टू डे लाइफ में जब हम स्प्रिंट वाइज काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्लान्ड हमारे डिलीवरेबल्स हैं ऑन डेली बेसिस वो हमें करना होता है। कुछ जैसे सपोर्ट के किसी प्रोजेक्ट में एडहॉक टास्क आ जाते हैं, कुछ कैंपेन जैसे करना है, कल कैंपेन लाइव जा रहा है, सारी तैयारी है क्लाइंट की और पेज ही नहीं बना है, तो उस कंडीशन पे अर्जेंट बेसिस पे करना पड़ सकता है। एज यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस इज, ऐसे ऐसे करते बीच बीच में चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोड डिप्लॉयमेंट पे हो चला गया है, मतलब सब कुछ हो गया है और फिर वहाँ से कॉल आता है कि कोड तो वो हो गया है, मतलब बहुत छोटा सा बग था बट बहुत ही मतलब ख़राब हो गया है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे इट्स नॉट अ कोड, कभी कभी कैश वगैरह क्लियर नहीं होती है तो प्रोडक्शन, अब वो लाइव साइट है, उसमें 1 मिनट भी डाउन टाइम मतलब काफ़ी बिजनेस लॉस हो सकता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कैश वगैरह क्लियर नहीं है, या हो सकता है डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल ना हुआ हो और साइट डाउन हो गई। तो जनरली हम बिज़नेस से टाइम लेके ही करते हैं कि ऑफ बिजनेस आवर्स, जैसे इंडियन क्लाइंट्स है तो आफ्टर 8 PM 9 PM, ये यूएस और वहाँ के क्लाइंट है तो अपने डे टाइम पे जहाँ पे उनका बिज़नेस ऑफ हो उस टाइम पे करते हैं कि अगर कुछ हो तो हमारे पास उसको रेक्टिफाई करने का टाइम हो, या एक अल्टरनेट बैकअप लेके चलते हैं कि एक अल्टरनेट सर्वर हो जहाँ पे एटलीस्ट जो करंट चल रहा है वो हम रोल बैक कर पाएँ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्लान में रहती हैं, बट या डेफिनेटली ये होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब 100% फुल प्रूफ है कि डिप्लॉयमेंट हुआ ये सक्सेसफुल ही होगा। होता है ऐसा, मतलब 90% केस में सक्सेसफुल होता है, बट 10% पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। तो बैकअप प्लान हर प्रोजेक्ट उस टाइम के पैनिक के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे ऑडियंस को कि हाउ नहीं, वो अब जैसे वही जो ड्रास्टिक चेंज वाली बात थी ना कि डेवलपर से लीड हैबिचुएटेड है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे पता है 2 घंटे का काम है, 1 घंटे वो कर देगा। अगर यहाँ पे कोई जूनियर रिसोर्स होता ही मे बी पैनिक कि अब क्या होगा। तो यही है, थोड़ा सा काम होके कूल होके सोचना पड़ेगा कि हाँ गलती तो हो गई है, डिप्लॉयमेंट फेल हुआ है, उसको कैसे अभी सही कर सकते हैं। अ गुड थिंग इज़ बिजनेस आवर्स नहीं है तो उतना बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, हमने अगर 4 घंटे लिया है तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट या दैट इज़ मैनेजेबल। और हम ये ट्राई करते हैं कि अपने एंड से कोई गलती ना हो, कि कोड की गलती बहुत कम होती है क्योंकि वो कोड उसके पहले स्टेज यूएटी और फिर प्रॉड पे जाता है। 2-3 बार टेस्टिंग हो चुकी है, क्लाइंट यूएटी फीडबैक दे चुका होता है, तो ऐसा कुछ बहुत रेयर होता है, बट सम टाइम ऐसा होता है। उज्जवल, तुम्हारे केस में ऐसा हुआ है कभी कि लाइव साइट? ये एक्सपीरियंस मतलब ये होना भी चाहिए वैसे, ठीक है। जब आप डेवलपर होते हो तो आप बहुत डरे हुए होते हो कि अरे अब क्या होगा, अरे ये तो उसमें फिर रोल बैक करते हैं लोग, फिर वापस से पुराने वर्जन पे जाते हैं, फिर जो भी होगा हॉट फिक्स जाएगा, वापस से डिप्लॉय होगा, ठीक है। लेकिन सवाल वो था कि आप डेली करते क्या है? हाँ, डेली कर, तो जैसा गौरव ने बताया तो ज़्यादातर सेम है, लेकिन थोड़े मेंटालिटी का फर्क है। जब मैं डेवलपर था तो वो सेम रूटीन फॉलो हो जाता था कि हाँ आज जाऊँगा, टिकट है, डिलीवर करना है, फिर आना है, ख़त्म करना है काम। अभी क्या है ना, अभी मैं सोच के सोता हूँ कि मैं सुबह उठूँगा, मैं मेल चेक करूँगा, फिर DSU अटेंड करूँगा, फिर ये मीटिंग ये फलाना, ये पूरा प्लान करके अगले दिन जब मैं ऑफिस आता हूँ कुछ फॉलो नहीं हो पाता। मतलब बहुत रेयर होता है कि वो पूरा वैसे फॉलो हो कि आप मेन चेक कर रहे हो, फिर उसके बाद DSU अटेंड कर रहे हो, फिर आप जिस प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड हो उस प्रोजेक्ट के काम कर रहे हो, ये बहुत कम हो पाता है। अब है कि यहाँ भी एक कॉल है, फिर वहाँ भी उसके बाद एक कॉल है, फिर वहाँ भी एक कॉल, मतलब कंटिन्यूस कॉल चल रही है। तो आप एक पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते डेली, और पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप फॉलो करने जाओगे तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। मैंने तो ये सोचा था, मैं वो कर ही नहीं पाया। तो ठीक है, मतलब जो है आ रहा है बस करते जाओ वैसी चीज़। और मैं फिर से वापस से उस पर जाना चाहूँगा, रोल बैक वाले पे। तो उसमें भी मेंटालिटी का फ़र्क है। जब आप डेवलपर हो तो आप सोचते हो कि अरे पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, और जब आप एज ए लीड पोजीशन पे हो, टेक लीड हो या प्रोजेक्ट मैनेजर वाले पोजीशन पे हो,
देन यू थिंक कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए कि जैसे बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। एक तो वो है कि आप रोल बैक करते हो, ठीक है, और दूसरा तब तक आप करते रहोगे कि हाँ हॉट फिक्स करके डिप्लॉय हो जाए। बस ये रहता है कि डिप्लॉय हो जाए एक बार कि लाइव हो जाए, उसके बाद से नींद लेंगे, जो भी होगा जो करेंगे वो बहुत सुकून सा होता है कि जब आप देखते हो प्रॉड पे लाइव साइट चल रही है, डिप्लॉयमेंट हो गया है, कोई बग नहीं है, वो बहुत बहुत सुकून वाला होता है। सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, आप भी रिलेट कर सकते हो वो चीज़। सबसे सुकून देता है फाइंडिंग ए रूट कॉज। एक प्रॉब्लम है, वेबसाइट पूरी फटी है और होती बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत टाइम लगता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो पकड़ में आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। गुस्सा तो आती है कि ये क्यों हुआ, बट सुकून भी देता है, वो लर्निंग है। से हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, वो चीज़ है वो कुछ सालों में आपको समझ में आ जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड यू आर नॉट अलोन। आपके साथ एक टीम खड़ी है ना, तो एक वो भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप ही वो चीज़ फेस कर रहे हो, टीम भी पूरी है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। राइट। तो मैंने अभी ये जैसे यू नो दैट आई हैव रिसेंटली जॉइंड, सो मतलब एज अ डेवलपर मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि शुड आई बी यूजिंग AI और शुड आई नॉट। तो फर्स्टली आई हैव 2 क्वेश्चंस अराउंड AI. फर्स्टली हाउ डू यू यूज़, लाइक आपको एक्सपीरियंस हो गया, इट्स बीन 6 years, so how do you use AI in your daily work, and for a fresher what would you recommend? तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट था कि पहले तो एज फ्रेशर आपको AI यूज़ करना चाहिए यार। अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, ठीक है, पहले तो भूल जाओ कि एग्जिस्ट करती है ये चीज़ है, AI या कुछ भी। पेन पेपर और नॉर्मल कोड, लॉजिक बनाना आपको सीखना पड़ेगा, वो आनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे कि बहुत फेमस हमारे टाइम में बहुत फेमस चलता है स्टार पैटर्न बनाना, पता नहीं आप लोग के टाइम पे क्या रहा है ट्रेंड, तो स्टार पैटर्न बनाना और पैलिंड्रोम और ये सब, तो ये बहुत बेसिक से प्रोग्राम्स है। तो ये आपको लॉजिक क्लिक होना चाहिए, आप उसका लॉजिक बना पा रहे हो पेन पेपर पे, फिर उसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो सेकेंडरी चीज़ है। तो ये चीज़ तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप बहुत शुरू से AI यूज़ करने लगोगे तो आप राइट, आप हैबिचुअल हो जाओगे, उस आप डिपेंडेंट ही हो जाओगे। आप फिर उसके अलावा आपको हैंडीकैप सा फील होगा कि नहीं मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा, ठीक है। वंस यू आर क्लियर विथ लॉजिक्स, वो समझ में आता है, आप DSA करो, वो समझ में आता है, वो सबको इतना तो पता होता है कि हाँ मुझे अगर ये चीज़ करना है, ये प्रोग्राम लिखना है, तो मैं लॉजिक बना लूँगी, ये चीज़ समझ में आता है। वंस यू आर गुड इन लॉजिक क्रिएशन, उसके बाद आप AI यूज़ करो। और उसमें भी ना उसमें भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अब AI जितने भी AIs हैं, ये जनरेटिव AI, उसका क्या है कि लर्निंग मॉडल पे चलता है। आप एक प्रॉम्प्ट दोगे तो 80% चांसेस है कि वो रिजल्ट सही नहीं होगा, यू हैव टू ट्रेन देम। तो आप अलग अलग वैसे बना के रखो कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग OpenAI ChatGPT, तो उसमें भी टेक्निकल वाले के लिए आप अलग सेक्शन बना के रखो। अगर आपको सिर्फ कुछ भी करना ही है, प्रेजेंटेशन या ईमेल के लिए कुछ भी करना, तो उसको उसके लिए एक अलग सा प्रोफाइल बना के रखो और उसको ट्रेन करते रहो। तो ऐसा होगा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ पूछोगे उससे, वो एक बार में आपको आंसर देगा। तो और एक चीज़ और है कि हम AI यूज़ करते जा रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम बहुत कुछ शेयर ना कर रहे हैं अपना, क्योंकि कोड जब हम लिखते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड NDA हम नहीं कर सकते, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो यू हैव टू फॉलो डैट। तो AI का यूज़ लॉजिक क्रिएशन में ये सब चीज़ों में यूज़ हो सकता है। अब जैसे कि मैं किसी इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वहाँ बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब मुझे वहाँ एक कैलकुलेटर चाहिए, प्रीमियम कैलकुलेटर, ये तो होता है इंश्योरेंस वाले उस पर। अब मैं वहाँ किसी लॉजिक पे फंस रहा हूँ, आई कैन ईजिली आस्क क्लाउड AI या जो भी पेन AI कि हाँ इसका क्या लॉजिक हो सकता है। उस चीज़ों में मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये मेरा तरीका है कि मैं उस पर्टिकुलर लॉजिक के अराउंड जाके प्ले करता हूँ कि हाँ ये कैसा है, और फिर उसको मैं चला के देखूँगा एक बार रफली कि हाँ ये सही रिटर्न दे रहा है कि नहीं। तो वैसे और एक चीज़ और है कि यू नीड टू बी श्योर कि वो जो काम कर रहा है वो सही है कि नहीं। बहुत बार अभी क्या होता है ना, जैसे गौरव भी PR रिव्यू करते होंगे और मेरे पास भी आती है PR रिव्यू के लिए, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होता है
जो हमें हमारे यूज़ के नहीं है वो, लेकिन लोगों ने डाल रखे हैं क्योंकि वो जनरेटिव लिखा हुआ कोड है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूजलेस और उसका कुछ काम नहीं है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इज़ यूज़फुल एंड फॉर मी इट्स अ प्लस पॉइंट। मेरा टाइम तो सेव कर ही रहा है, जैसा गौरव ने बताया। ओके, सो आप फ्रंट एंड से हैं, आप बैक एंड से हैं, सो हाउ डू यू कोऑर्डिनेट व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कम्स? मतलब डिमांड होती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड में भी रिक्वायरमेंट होती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पहले बैक एंड से आना चाहिए, तब हम विल कंटिन्यू। और आपका कैसे रहता है कि मतलब फ्रंट एंड की कुछ रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हो आपस में? जब भी कोई टीम बनती है तो फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स और क्यूए को ज्वाइन करके एक टीम बनती है, ठीक है। अब उसके बाद व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो फिर चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाता है स्टोरी पॉइंट्स पर, टिकट्स में और टास्क में वो ब्रेक डाउन किया जाता है। कि जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट है, उसका एक बैनर बनाना है, ठीक है। बैनर पे फॉर्म भी है, ठीक है। अब बैनर का जो यूआई है वो यूआई वाला काम करेगा, यूआई डेवलपर काम करेगा। अब जो फॉर्म का सबमिशन है और डेटाबेस का लॉजिक है, वो सारा लॉजिक बैकएंड वाले लोग देखेंगे, ठीक है। फिर वो दोनों एक जगह बैठेंगे अप्रोच डिस्कशन के लिए कि हम क्या अप्रोच ले रहे हैं इस कंपोनेंट को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क को बनाने के लिए। वो ज़रूरी है, वही है उनका ब्रिज वाला पॉइंट कि वो दोनों साथ में बैठते हैं, एक बैकएंड है कि वही कि ये अप्रोच रहेगा, साथ में क्यूए का भी होना ज़रूरी है, ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे और ऐसे ऐसे यहाँ पे आके एपीआई पे आके ये हम चेक करेंगे कि हाँ सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत लेमन टर्म में बताया मैंने, और ये डिपेंड करता है अलग अलग वो टास्क पे क्या टास्क है और क्या हमें क्रिएट करना है। गौरव? हाँ, जैसे मान लीजिए स्टार्ट्स बात करते हैं, फिग्मा आ गया हमारे पास, डिज़ाइन आ गई और उससे हमने कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर लिए। अब ऐसी डिपेंडेंसी डायरेक्ट नहीं है कि बैक एंड और फ्रंट एंड को एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़े। फ्रंट एंड कैन पैरेलली डू HTML CSS, बैक एंड डायलॉग और हम AEM की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना सकता है। हाँ, उसके बाद AEM में जब बन जाएगा, फ्रंट एंड में जब बन जाएगा तो इंटीग्रेशन। आप बता दो कि टेक स्टैक जो एएम की आप बात कर रहे हो क्या है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा एक वो। So AEM is one of the CMS which is used to build websites, और यहाँ पे फ्रंट एंड मान लीजिए प्लेन्स JS CSS React Angular वगैरह भी है जो, और बैक एंड में जावा वगैरह यूज़ होती हैं, और फ्रंट एंड में जो HTML पार्ट है उसको साइटली, वी कॉल इट साइटली। तो ये जो साइटली है इसमें सिंटेक्स वाली लैंग्वेजेस है। तो मान लो उन्होंने प्लेन HTML लिख के दे दी फ्रंट एंड ने, बैक एंड डेवलपर कैन राइट इट डायनेमिक, और जो भी साइटली के सिंटेक्स हैं वो लगा देता है। सो इट्स नॉट लाइक कि हमें पूरी तरह से वेट करना पड़ेगा फ्रंट एंड वालों को कि बैक एंड कंप्लीट करें देन आई विल स्टार्ट। इट्स नॉट द केस एनी मोर, नाउ वी कैन गो हैंड इन हैंड। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, हाँ, बट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है देन वी नीड टू सिंक कि फ्रंट एंड से क्या डेटा चाहिए, बैक एंड से क्या डेटा हम सप्लाई कर सकते हैं, उस पे सिंक करके स्ट्रक्चर फिक्स करके ही बनाना पड़ता है। तो इस तरह, जैसे बेस्ट एग्जांपल दिया बैनर में, फॉर्म है, फॉर्म में फ्रंट एंड अगर किसी बैक एंड API को कॉल कर रहा है तो क्या क्या पैरामीटर्स भेजेगा, बैक एंड API जो लिखेगा वो पैरामीटर्स को लेके फर्दर क्या यूज़ करना है, क्या करना है, तो ये एक सिंक में होना चाहिए। ओके, सो अब आई हैव अ फ्यू मतलब रैपिड फायर क्वेश्चंस, ये हमने न्यू सेगमेंट ज्वाइन ऐड किया है। सो यू जस्ट हैव टू आंसर इन वन वर्ड, लाइक व्हाट दिस थिंग इज टू यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू एंटर्ड इनटू डेवलपर, यू ended up as a developer by chance or by choice? बाई चांस, आई मीन ये तो पहले से क्लियर। If not a developer, you would be a मे बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं तो UPSC की तैयारी कर। नहीं यार, अब तक हो जाना चाहिए था। your favorite front-end tech stack. React. Your favorite part of backend no one talks of. ऐसा क्या है जो कोई बात नहीं करता? इट्स, हाँ, डिस्पैचर, बट लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिस्पैचर, बट डिस्पैचर। Hear this question. One thing you love and hate about your profession and each other. Documentation. I use AI. I take help from AI to create a document for me.
अब तो डाउनलोड करके भी दे दे रहा है, सो दैट काइंड ऑफ रिलैक्स फॉर मी, बट डॉक्यूमेंटेशन इज One thing you love and hate about each other's profession and your profession. ऐसा कुछ हमें फ्रंट एंड का कुछ भी ऐसा मतलब नहीं लगता, सब सही है, बैक एंड में भी सब सही लगता होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट फ्रंट एंड कोई वेबसाइट बन जाए, विदाउट बैक एंड बन जाए, अगर वो कुछ बैक एंड है भी, हालांकि फ्रंट एंड से तो बनी जाती है। तुमने बनाया ऑलरेडी वो पेज उसमें कोई बैक एंड नहीं था। One tool extension you cannot live without. Not tool, but I can say I use AI a lot, so I cannot say I cannot live it without it, but yes, I use a lot. Again, I agree with Gaurav in Cursor or Copilot. So we'll be wrapping up with this segment. This is the interview segment. So आप दोनों ने मतलब you have experience of interviews. तो कुछ मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ कि मतलब बहुत ही ऐसा हो गया हो कि यू हैड वेरी फनी एक्सपीरियंसेस बट यू हैड सम स्टूडेंट्स यू नो हु गेव यू मोटिवेशन कि हाँ ऐसा होता मैं अगर उस टाइम पे तो क्या ही होता। सो मेरा मोटिवेशन वाला नहीं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है, ऐसे स्ट्रेंज टाइप के इंटरव्यू हुए हैं। एक इंटरव्यू लिया था, शी वाज सीनियर, ऐसा नहीं था कि कुछ जूनियर था, मोर देन 4 or 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, इमीडिएटली उसको कुछ नहीं आ रहा है, दैट एंड आफ्टर सम टाइम शी व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग अनदर क्वेश्चन, उस समय उसके रिस्पांस आने लगे। सो 1-2 बार तो देखा, 2 मिनट चला इंटरव्यू, बट लुक्स वेरी वियर्ड टू मी। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन होती है इंटरव्यू की, मतलब जो भी मीटिंग चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग ऑन होती है, और मुझे उस समय पता नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरी ऑडियो बाद में पहुंच रही है उनके पास तक। तो मैंने देखा वीडियो तो पॉज हो नहीं रहा है, मतलब नेट स्पीड चेक की, सब कुछ बढ़िया था। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर यही हुआ। मेरे क्वेश्चन बोलने के वेट हुआ 15 सेकंड 20 सेकंड मैंने इंतज़ार किया। जब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसके बीच में पूछा नहीं, अगर क्वेश्चन समझ में आया शुड आई रिपीट, तब भी कुछ नहीं आंसर आया। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, और दूसरा क्वेश्चन सुनने से पहले उन्होंने पहला क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर देना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। देन आई हर्ड समथिंग, सी वाज लुकिंग, बार बार वो अपने ईयरफोन्स पे नोटिस कर रहे थे, और आई एम हियरिंग माई वॉइस एज ए इको। सो मुझे लगा कि इनका ईयरफोन, जो हेडफोन है वो लैपटॉप पे तो नहीं लगा है, लेकिन ईयरफोन है उनके कान में। तो फिर मैंने बोला ईयरफोन हटा दो हमें आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी। तो पहले तो सीरियस्ट, फिर बाद में हटाया, उसके बाद उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। देन मैंने उस समय हमारे यहाँ HR थी पूजा, उनको मैंने वीडियो भेजा उनको, एंड दैट वाज लिटरली सी इज़ ऑन कॉल विद समवन, एंड वो पता चल रहा है हमें, एंड इमीडिएटली ही इज़ लिस्निंग, द अदर गाई हु इज़ लिसनिंग, एंड सी इज़ इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग। तो ये हुआ था। देन आई और मतलब उसको हटा दिया। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है इंटरव्यू, जो पता चलता है सामने वाले को, आई मीन 90% केस में पता चल जाता है। समवन इज़ टाइपिंग, आई कैन सी इन हिज स्पेक ही इज़ टाइपिंग, मुझे दिख रहा है सामने कि आप टाइप कर रहे हो, वहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है मेरा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे थिंक लाइक एनीवन कैन फूल। योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। हाँ जी, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। आई विल टेल यू वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। तो शी वॉज गिविंग इंटरव्यू, और वो बेड पे बैठ के इंटरव्यू दे रही थी। तो बेड के पीछे ना बहुत शाइनी वॉल्स होती हैं, सनमाइका बोलते हैं उसको, अलग अलग। तो उसमें क्या है ना कि अगर कोई बैठा है तो उसका शैडो भी बनता है, रिफ्लेक्शन भी बनता है। तो 5-10 मिनट बढ़िया चला। तो जब वो टेक्निकल राउंड चलने लगा, तो आई सॉ कि कोई बंदा खड़ा है लैपटॉप लेके, और वो टाइप किया जा रहा है, और बता रहा है बार बार हर चीज़ का, वो दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है कि वो हमारा रिफ्लेक्शन बन रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर इमेज नहीं बनती, लेकिन पता चलता है। और वो पॉइंट आउट भी किया। पॉइंट आउट करने के बाद शी ड्रॉप्ड आउट इन द मिडल ऑफ इंटरव्यू, शी ड्रॉप्ड आउट। और ये तो है ही। और ऐसे ही एक और था कि इंटरव्यू शुरू हुआ, ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर किया, फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर किया। व्हेन आई आस्क्ड थर्ड क्वेश्चन, तो कैंडिडेट वाज नॉट एबल टू आंसर इट।
तो ये भी नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, कुछ बताओ, ही ड्रॉप्ड ऑफ इन द मिडिल। और उसके बाद मैंने आई आस्क्ड HR कि क्या हुआ, ही वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल। ये बहुत होता है, ये बहुत कॉमन है। और ये जैसे गौरव ने बताया कि चीटिंग वाले, ये भी बहुत कॉमन है। और बहुत इंटरेस्टिंग में पता चलता है ये स्पेक्स के इससे रिफ्लेक्शन से कि यहाँ पे कोई अगर एक्स्ट्रा बैठा है तो दिखता है, क्योंकि ये वेरी क्लोज टू द कैमरा, वेब कैम। कुछ तो एक्सपर्ट होते हैं कि वो पता नहीं चलने देते इंटरव्यूअर को। सर सॉरी सर, पार्डन सर, सॉरी सर। तो उस समय तक पास ऑन हो रहा होता है। तो ये होता है। और ये समझ में आ जाती है। आज हाँ आ जाती, पता चल जाता है। हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उस समय हमें लगा नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। इन पर्सन इंटरव्यूज में हाँ, तो जब HR ने बताया कि आप नेक्स्ट टाइम से हटवा देना ईयरफोन्स अगर डाउट लगे, तब हमें लगा ऐसा भी कुछ होता है। तो हमें लगा जो उसके साथ कॉल पे था, जो भी था, लेडी एजेंट जो भी था, वो अच्छा नॉलेजेबल था, वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे देता, उसको हायर कर लेते। और इन पर्सन का एक बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस है, वियर्ड भी सही वर्ड नहीं होगा। तो कैंपस प्लेसमेंट चल रही थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे ऑफिस में। वो एक इंटरव्यू चल रहा था। आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। वो 5 मिनट बाद वो मेरे से उल्टा सवाल पूछता है, अच्छा ये बताओ इसका इसका ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो वो फर्स्ट आई थॉट कि क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है एक इंटरव्यू में कनेक्शन बनाने का। और फिर वो 5 मिनट बाद 10 मिनट समझ में आ जाता है कि क्या मोटिव से मतलब आया है बंदा। तो ये चीज़ें होते रहती हैं। अच्छा, Okay. So let's end this particular episode. It was very informational and it was amazing. So, आप लोग कोई एक ऐसी particular advice you would like to give to students who are preparing, who are watching, कि कैसे उनको prepare करना चाहिए to land up into that role of developer? तो जो भी अभी प्लेसमेंट में बैठेंगे या बैठने वाला है, एक लैंग्वेज आना चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेस को तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आना चाहिए। और प्लस DSA के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एरे और बेसिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आपको मुश्किल नहीं होगा, यू विल बी ईजिली एबल टू क्रैक ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, इंक्लूडिंग कैंपस इंटरव्यूज। तो एक लैंग्वेज कोई पकड़ो, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, C++, जावा, और अगर आपको फ्रंट एंड भी सीखना है तो जावास्क्रिप्ट पकड़ो। लेकिन आपका DSA वाला लॉजिक थोड़ा सा बेसिक जो DSA, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जाकर प्री का पूरा कुछ भी ऐसा प्रोग्राम आपसे नहीं सॉल्व करवाएंगे, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो भी आपको सेलेक्ट करने ही आया है, वो ऐसा नहीं वो रिजेक्शन के लिए बैठा है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक DSA पढ़ा किया है। इसमें एक साइट है हैकर रैंक, ऐसे कई ऐसी साइट्स है जो प्रॉब्लम्स देती है ना, वो बहुत यूज़फुल हो जाएगी अगर कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर में, प्रॉब्लम स्टार्ट कर दे वहाँ सॉल्व करना, तो उसकी लॉजिक जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके नीचे टेस्ट केसेस भी ऑटोमेटिक होते हैं और वो बताते हैं कि ये पूरे एज केसेस को कवर कर रहा है सॉल्यूशन कि नहीं। तो हैकर रैंक इसी तरह की कई वेबसाइट्स हैं जो कई प्रॉब्लम्स देती हैं, वो डेफिनेटली सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो उससे बड़ा हेल्प मिलेगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इसी तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। This was such a fun episode with Gaurav and Ujjwal. Trust me, this was nothing. There are many more episodes lined up. So stay tuned, And please like share and subscribe to our channel.